मैक्सिमम है चेक कर लेना एंड ये सिंबल्स चेक करना। ये तो डिफॉल्ट कंडीशन है, ये प्लस है और कॉमा है, एक बार चेक करो। मैक्सिमम है, मिनिमम चेक कर लेना, फिर ये ग्रेटर देन सिंबल चेक कर लेना। सो फर्स्ट एलपीपी ग्राफिकल मेथड पूछ रहा, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये सब्जेक्ट्स टू कंस्ट्रेन है थी। तो क्या करना, ये पूरे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेन है ना, इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लेना। कैसे बोले तो सिंबल निकाल देना। 3x1 प्लस 5x2 है ये, इक्वल्स टू 15, x2 है। ओके, ये इक्वेशन 1। ओके, नेक्स्ट 5x1 plus 2x2 equals to 10. Equation 2. Just removing the signs. x1 plus x2 equals to 0. Equation 3. So to get the graph, what we are doing from equation 1, when x1 x2 values find out कर रहे हैं। When x1 equals to 0, what is x2? So कौन से इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में कर रहे हैं। So x1 0 अप्लाई करो, प्लस 5x2 इक्वल्स टू 15। So x2 कैसे आता है आपको, 15 divided by 5, that is 3. So here what are the points I am getting, x1 comma x2, 0 comma 3. Repeat the same, x1 0 बोल के तो ये आया। Then when ये पूरा इक्वेशन 1 का ही है, when x2 equal to 0, what is x1? Okay, same equation, 3x1 plus 5x2 equals to 15. 3x1 plus 5 into 0 equals to 15. So इधर x1 क्या हो गया, 15 divided by 3, 5. So what are the points I am getting, x1 comma x2, 5 comma 0 from equation 1. These are also highlight कर लो box डाल के. This is also from equation 1. Repeat the same procedure for equation 2 and equation 3. We have to get the graphical points. From equation 2, when x1 equals to 0, what is x2? What is equation 2? 5x1 plus 2x2 equals to 10. 5 0 plus 2x2 equals to 10. So x2 क्या हो गया, 10 divided by 2, 5. So what are the points I am getting from equation 2? x1 क्या है, 0 comma 5. This is from equation 2. 1 का हो गया ना, अभी equation 2 का है। Then same steps, when x2 equal to 0, what is x1? Yes. क्यों हंस रहे? नहीं मैंने ना x1 इक्वेशन 1 बोले तो से आगे। फिर x1 x2 0, x1 फाइंड आउट करें, 2 into 0 equals to 10. So x1 10 by 5, that is 2. Now what are the points, x1 comma x2, 2 comma 0. 2 comma 0 ना, इधर 2 comma 5 आ गया। This is from equation 2. Now from equation, ज्यादातर 2 ही इक्वेशन देता है, इसमें 3 इक्वेशन दिया। Equation 3, repeat the same, when x1 equals to 0, what is x2? What is equation 3, x1 plus x2 equals to 0. ये तो 0 0 ही आता, 0 plus x2 0. So x1 comma x2 0 ही है, ये 0 comma 0 वैल्यू नहीं दिया ना। Yes. तो when x2 also 0, 0 comma 0 ही चाह रहा, 0 मतलब पूरा 0। तो ये पॉइंट्स इसके हिसाब से हम ग्राफ ड्रॉ करना। सैंपल आप बना दो ना मैसेज। हाँ यहाँ पर इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, what are the points we are getting, x1 comma x2, 0 comma 3, 0 comma 3, next x1 comma x2, 5 comma 0. Okay,
from equation 2 x1 comma x2 0 comma 5 x1 comma x2 2 comma 0, that is x1 from equation 3 x1 comma x2 0 comma 0. Okay, so highest value 5 है, least value 0 है. Okay, हाँ so we can take 1 difference. Always x1 will be on horizontal, यस x2 will be vertical. ओके Because here variables x1 x2 ही है बोल के x1 x2 ले रहे हैं. आप y लेना नहीं लेना क्योंकि y का नहीं है वेरिएबल. So x1 x2 ही है बोल के x1 x2. So origin 0, so 1 scaling ले रहे because less values है ना, इसलिए 6 इधर भी 1 2 3 4 5. So equation 1 का पॉइंट्स क्या है, x1 x2 0 and 3. x1 क्या है 0, x2 क्या है 3. So this is my first point. From equation to x1 क्या है 5 है, x2 0 है, x1 5 इधर है. Okay, x2 0. जीरो Now these two we have to join. Okay, ओके after joining you have to check with the symbols. Less than है, greater than है, ये less than है. Less than है तो shading portion below the line, greater than है तो above the line. Why? Because we have to find out the feasible region. So shading का portion below the line because of the less than symbol. ओके, इक्वेशन 2 का पॉइंट्स क्या है, x1 कॉमा x2 0 कॉमा 5, x1 0 x2 5. एक में करना पड़ता है हाँ, एक में करना. ओके, नेक्स्ट क्या है, x1 कॉमा x2, x1 is 2 x2 is 0. ओके, ये 2 पॉइंट्स ज्वाइन कर लो. फिर सिंबल देख लो, लेस देन ही है ना, तो बिलो द लाइन. सो वेरिएशंस, you have to show the variations by shading with different kind of horizontal, vertical, curves ऐसा. Okay, equation 3 0 0, it is not. Actually वो प्लस सिंबल नहीं है, वो कॉमा ही रहता. वो कंडीशन, फोर्थ कंडीशन, greater than or equals to 0, because in the theory I have given this is objective function, this is subject to constraint, this is non-negativity, compulsory greater than 0 ही रहता. ये कॉमा ही है, इक्वेशन नहीं होता. ओके, छाप दिया सो अभी फिजिबल रीजन फाइंड आउट करना. फिजिबल रीजन क्या है बोले तो ऑल द शेडिंग पोर्शन शुड इंटरसेक्ट. Okay, and it should be close. This portion if you take only equation 2 lines are there. यस This portion if you take only equation 1 lines are there. You have to check that all the 2 equations are intersecting at one region. ये portion देख लो, ये highlight कर. This one you have to highlight. ये 2 regions intersect हो रहे हैं ना, यस equation 1 and equation 2, and it should be closed one. Close है ना, और ये रहना. जीरो के मतलब जीरो के क्लोज. हाँ, corners. हाँ कॉर्नर्स क्लोज रहे. 0 ओरिजिन है, ग्राफ है, ये कॉर्नर्स आप दूसरे करते ना तो ओपन रहता वो रीजन शेडिंग. तो ये फिजिबल रीजन इधर आ गया. आने के बाद हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर, 4 कॉर्नर्स. दिस इज ए कॉर्नर, दिस इज बी कॉर्नर, दिस इज सी कॉर्नर, दिस इज डी कॉर्नर. यू कैन टेक वाइस वर्सा, इट इज नॉट कंपल्सरी टू टेक लाइक दिट ओनली. नाउ इधर ए का x1 x2 पॉइंट्स क्या है, x1 x2 0 कॉमा 3 ये 0,3 क्या है, ये ओरिजिन का यहाँ है ना. 0,0 इस रहता. अच्छा ओके ये वाले बी का क्या है पॉइंट्स, x1 2 रहता तो एंड x2 0 रहता. डी का क्या रहता, x1 0 रहता, x2 3, दिस रीजन. सी का क्या है, अभी सी का कंफ्यूजन रहता. 2/3 है. इधर से ये है पॉइंट लिख देना. 1 पॉइंट समथिंग आ रहा, और ये 1.8 x1, ग्राफ पे अच्छा दिखता है. और ये
2.6। अगर आपको कंफ्यूज है नहीं मैम करेक्ट एग्जैक्ट नहीं है तो आप सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। नहीं 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 नहीं। हाँ इसको एक्सप्लेन करते हैं। हाँ तो कैसा है इक्वेशन 1 एंड 2? 3x1 प्लस 5x2 equals to 10 or 15. 5x1 plus 2x2 equals to 10। क्योंकि ए टू इक्वेशंस में पॉइंट्स आ रहा बोल के इक्वेशन 1 2 ले रहे तो सॉल्व करके दो एक में से कैंसिल होना ना तो इसीलिए व्हाट आई एम डूइंग मल्टीप्लाइंग द अबव इक्वेशन विद 5 मल्टीप्लाइंग सेकंड इक्वेशन विद द 3। सेम वैल्यू है तो कैंसिल कर सकते ना। तो 5 3 जा 15x1 प्लस 25x2 15 5 जा 75 हाँ 3 5 जा 15x1 प्लस 6x2 इक्वल्स टू 30। साइंस चेंज करो क्योंकि वी हैव टू कैंसल नो। यस प्लस 15x1 माइनस 50x1 कैंसल। 25 माइनस 6x2 कितना? 90 19x2। 75 माइनस 30 कितना? 35 35 35 क्यों आता? 45 45 आता। नाउ x2 कितना है? 45 डिवाइड बाय 19 कितना आ रहा आपको? तुमको क्या है? 2.6 आ रहा। उधर क्या आ रहा? 2.36 36। तो और एग्जैक्ट वो 2.3 हाँ तो इधर 2.3 चेंज कर लो। 60 हाँ अभी x2 कितना आया हम लोगों को? 2.3 आया। नाउ अप्लाई एनी वन ऑफ द इक्वेशन टू गेट द x1 वैल्यू। कौन सा भी अप्लाई करो आप सेम वैल्यू आता। तो आई एम अप्लाइंग इन द इक्वेशन 1। 3x1 प्लस 5 इंटू 2.3 इक्वल्स टू 50। 3x1 5 इंटू 2.3 कितना? 11.5 equals to 50। Now 15 minus 11.5 कितना? 15 minus 11.5 3.5 3.5 divided by 3 vehicles to 1 vehicles divided by 3 1.16 1.16 आ रहा। हाँ तो 1.8 आ रहा तो इसको आप 1.1 लिख दो। ओके Okay. Now what you have to do, whatever the ABCD values are there, no, you have to substitute in the objective function। क्योंकि आप कौन सा भी प्रोडक्ट मार्केट में सेल करना चाहते हो तो कितने अमाउंट से सेल कर सकते हैं ओवरऑल कैलकुलेशन उसके लिए हम एलपीपी सम यूज करते हैं। ओके ना। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में किसके मशीन के लिए लेबर वर्कर्स के लिए प्रोडक्ट सेल करने के लिए तो वी आर यूजिंग। तो व्हाट आर द पॉइंट्स? ए पॉइंट क्या है? 0,0। बी पॉइंट्स क्या है? 2,0। सी पॉइंट क्या है? 1.1, 2.3। डी वैल्यू क्या है? 0,3। What is the objective function? Z equals to maximum है वो। Maximum Z equals to 5x1 plus 3x2। तो substitute 5 into 0 x1 0 plus 3 into x2 0 0 value। Okay। Now x1 2 plus 3 into 0 5 into 2 10। ये values ग्राफ पे आए ना वैल्यूज। हाँ ये नेक्स्ट 5 इंटू 1.5 प्लस 3 इंटू 2.3 करो ये कैलकुलेशन। 3 मीटर खुले रहो 3 into 2.3 6.9 कौन सा? 3 into 2.3 5.5 5.5 ना ये कौन सा है? 5 इंटू 1.1 प्लस 9 6.9 आ रहा ना। 5.5 इसका आ रहा मैम और इसका कितना आ रहा है जी? 6.9 आता। कितना है? 2.3 3 into 2.3 2.3 4.6
4.6 आ रहा है 2 3 6.9 में 5.5 प्लस 6.9 कितना 12.4 12.4 12.4 12.4 तो क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा बोल के यू हैव टू टेक द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द फिजिबल पॉइंट्स व्हिच इज द मैक्सिमम वैल्यू ये so this 12.4 is an multiple optimal solutions of LPP maximum value C point that is 12.5 अगर मिनिमम पूछा तो मिनिमम ले लेना फिर अब इसमें मिनिमम 9 है 0 जीरो है पर आप जब मिनिमम क्वेश्चन पूछता है ना जीरो नहीं आता One to one. वैल्यू ओनली ओके अगर दो बार 12.4 आ रहा 12.4 आ रहा मैक्सिमम पूछा क्वेश्चन में 12.4 है 12.2 बार आ तो उसमें क्या करना कंक्लूजन में लिख देना मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोल के लिख देना कंक्लूड करना सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एलपीपी इसमें स्पेशल केसेस है अनबाउंडेड है इनफिजिबल है आप लोगों को उतना नहीं पूछता अनबाउंडेड इनफिजिबल है तो नो नीड टू कम अप टू हियर ओके इधर एक ग्राफ में क्लोज कर क्योंकि पॉइंट्स नहीं आते आपको अनबाउंडेड में इनफिजिबल में सो आप ये पूरा करने का जरूरत ही नहीं अगर फिजिबल रीजन आए तो ही पॉइंट्स आए तो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में मल्टीप्लाई करना अनबाउंडेड इनफिजिबल इधर तक छोड़ देना क्योंकि ग्राफ आपको फिजिबल रीजन फाइंड आउट नहीं होता ना तो यू कांट एबल टू फाइंड आउट इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन बट पुनः नहीं देता कंपल्सरी फिजिबल रीजन का ही क्वेश्चन पूछता जी ओके